OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment of this chapter, we had discussed about DNA, right? Today we are going to go ahead and discuss about another type of genetic material which is found in certain viruses, which is the RNA. अच्छा, जो RNA होता है ना, it was actually the first genetic material, right? So when we are going to discuss RNA, we are going to first discuss कि actually ये first genetic material था and then what was the need of the formation of DNA. Right? Then we will be discussing the structure of RNA. जैसे हम लोगों ने DNA as a polynucleotide chain study किया था. We had studied about the nucleosides, about the nucleotides and then how the polynucleotide chain form. Right? तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि RNA के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस होते हैं from the DNA structure. Then we are also going to talk about the types of RNA. Right? And when we talk about the types of RNA, इसमें हम लोग 3 बेसिक टाइप्स को कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. वी आर गोइंग टू कवर mRNA और मैसेंजर RNA, tRNA और ट्रांसफर RNA एंड rRNA और राइबोसोमल RNA. राइट? तो आज हम लोग RNA को इन पर्टिकुलर सब टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे. सो लेट अस बिगिन. So first of all, RNA as the genetic material, right? अब देखो, first genetic material, it has been proved and there are enough evidences to prove that RNA was actually the first genetic material. बहुत सारे biochemical reactions जो होते हैं ना, they are actually performed around the RNA. जैसे कि metabolism हो गया, translation हो गया, splicing हो गया, all these are performed around the RNA, right? लेकिन क्योंकि RNA was not stable, initially तो primitive organisms and viruses में ये देखा गया है RNA is the genetic material, right? लेकिन RNA stable नहीं था and that is why it mutated very quickly, right? And it was essential कि जो भी information एक organism से दूसरे organism तक carry हो रही है वो preserve रहे, right? बहुत हद तक वो preservation की ज़रूरत stability से आती है, right? And that is why RNA, which was initially single-stranded, became double-stranded to form the DNA. DNA being more stable was able to preserve information and carry it from generation to generation, right? There were mutations in DNA also, but they were not as vast as in the RNA, right? So that is how RNA as the first genetic material was actually transformed into a more stable DNA which became the hereditary material in most of the organisms, right? अब जो RNA था, अगर हम लोग उसके functions पे focus करें या characteristics पे focus करें, so when we talk about the RNA as the first genetic material, first of all it was single-stranded, right? And then it was transformed into DNA which was double stranded और इसमें अगर कोई भी section lost हो जाता था, it resist any changes and repaired itself, right? So DNA जो था, it had an evolved mechanism to repair itself, so it was more stable obviously. RNA में एक और चीज देखी गई थी, apart from metabolism, it also catalyzed certain biochemical reactions. See, जो कैटलिस्ट होते हैं ना हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर, दे आर जनरली प्रोटीन्स, बट RNA was also found to be catalyst in certain biochemical reactions. अब देखो, जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं, राइट? सो दैट दे कैन ब्रिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे भी प्रूव होता है कि RNA जो था और राइबोजाइम्स, जो RNA कैटलिस्ट होता है, उनको हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं राइबोजाइम्स. तो ये जो राइबोजाइम्स थे वो एक्चुअली स्टेबल नहीं थे बिकॉज दे हैड टू रिएक्ट, राइट? दे हैड टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस, राइट? दूसरी चीज ये कि RNA was found to carry the genetic information from the nucleus to the cytoplasm. तो ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म.
कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करता है? इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. देखो, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज, राइट? सो प्रोटीन सिंथेसिस is actually evolved around the RNA, right? So when we talk about the functions of the RNA, it is basically involved in protein synthesis. It carries information from the nucleus to the cytoplasm so that appropriate regulatory proteins can be synthesized for all cellular activities, right? तो as such देखा जाए तो RNA का भी बहुत बड़ा रोल है in the functioning of an organism, right? अब अगर हम लोग देख लें स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए और इसको कंपेयर कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले डीएनए के बारे में पढ़ा था, राइट? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियोसाइड आर फॉर्म्ड, राइट, जिसके अंदर शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस एक साथ जुड़ जाते हैं. एंड देन द न्यूक्लियोसाइड फॉर्म्स द न्यूक्लियोटाइड बाय अटैचिंग टू अ फॉस्फेट ग्रुप, राइट? Nucleoside plus phosphate is equal to the nucleotide, right? तो अब अगर हम लोग डीएनए से कंपेयर करें और आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो शुगर होता है इट इज नॉट डीऑक्सीराइबोस, इन फैक्ट इट इज राइबोस शुगर, ठीक है? तो जो शुगर होती है उसका डिफरेंस देखो, हम लोगों ने डीएनए में पढ़ा था राइट, हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है. द शुगर दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट वाज द डीऑक्सीराइबोस शुगर. अच्छा, डीऑक्सीराइबोस में होता क्या है? देयर इज वन OH हियर ऑन द फर्स्ट ग्रुप, देयर इज वन OH हियर on the third carbon atom. So this is the first carbon atom, this is the second, this is the third, right? And फिफ्थ कार्बन एटम पर भी एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है, राइट? एंड वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ दिस हियर इज गोइंग टू फॉर्म द फर्स्ट कार्बन, आई एम मीनिंग, is going to form a bond with the nitrogenous base. Let us take adenine for example, right? This here is going to form a bond with the phosphorus group, right? और यहाँ पे आएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोरस ग्रुप, राइट? सो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड और ये फॉस्फोरस है दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो चेन फॉर्म करता है. The only difference between deoxyribose and ribose is this कि deoxyribose में सेकेंड पोजीशन पे OH नहीं होता है, राइट? जबकि राइबोस में फर्स्ट पोजीशन पे भी OH, सेकेंड पोजीशन पे भी OH, थर्ड पोजीशन पे भी OH एंड फिफ्थ पोजीशन पे भी OH अटैच्ड होता है, राइट? सो दिस इज द ओनली डिफरेंस व्हिच यू नीड टू रिमेंबर कि राइबो शुगर में 2-OH is also present, right? And this OH is actually a reactive group, right? और इसीलिए RNA जो होता है वो reactive होता है rather than being stable. So it has an extra reactive group and that is why it is less stable than DNA. ठीक है? तो ये तो हो गई बात शुगर की. How the ribose is different from the deoxyribose. What about the nitrogenous bases? अब तुम लोगों ने DNA के टाइम पे पढ़ा था there are two purines, adenine and guanine, and there are two pyrimidines, cytosine and thymine, right? RNA में भी ऐसे ही nitrogenous bases होते हैं. There are two purines, there is the adenine, there is guanine, and there are two pyrimidines, cytosine. लेकिन थाइमीन की जगह RNA के अंदर होता है uracil, right? So there is a difference in the sugar, there is a difference in the nitrogenous base, the pyrimidine nitrogenous base. Thymine की जगह यहाँ पे आ जाता है uracil, right? तो ribose plus adenine will be riboadenosine, the nucleoside. Ribose plus guanine will be riboguanosine nucleoside. Ribose plus cytosine will be ribocytidine, and ribose plus uracil will be ribouridine.
राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है. सब्सिक्वेंटली जब इसमें एक एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. राइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइबोग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, राइबोसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड राइबोयूरिडीन मोनोफॉस्फेट. राइट. तो अब तुम देख सकते हो हाउ देयर इज अ डिफरेंस in DNA and RNA related to the sugar as well as the nitrogenous base, right? And that is why RNA is also known as ribonucleic acid, because it has a ribose sugar. ठीक है, I hope this is understood, right? अब आ जाते हैं on the types of RNA. बिफोर वी मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ आरएनए, हम लोगों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अकरेंस क्या है आरएनए का, वेयर इट अकर्स इन द सेल, एज वेल एज फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है आरएनए का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग अकरेंस की बात करें, आरएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है, स्फेरिकल होती है, उसके अंदर आरएनए होता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इट मे ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स. तो साइटोप्लाज्म में या तो फ्रीली आरएनए होता है या फिर इट मे बी एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स, राइट. अब तुम्हें आसानी से समझ में आएगा व्हाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, राइट. अब देखो हम लोगों ने ये बोला कि आरएनए का जो बेसिक फंक्शन है इट इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस. सो एक्चुअली ये जो 3 टाइप के आरएनए है ना, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. कैसे? यू आर गोइंग टू गेट टू नो एज एंड व्हेन वी डिस्कस द 3 टाइप्स. So first of all, let us move to first type, which is mRNA. mRNA और मैसेंजर RNA. अच्छा, मैसेंजर का काम क्या होता है? Basically, it carries information from one person to the other, right? वैसे ही ये जो मैसेंजर RNA है, it is carrying information from the nucleus of the cell to the cytoplasm. Information for what? Information for protein synthesis. अच्छा, कौन सी ऐसी सेल्यूलर ऑर्गेनल होती है जो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है? इट इज द राइबोसोम्स, राइट. सो ये इंफॉर्मेशन लेकर किसके पास जाएगा? राइबोसोम्स के पास जाएगा. सो इट गेट्स एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स, राइट. और वहां पे ये एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है, राइट. एक टेम्पलेट बनाता है और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है एंड अकॉर्डिंगली द प्रोटीन्स विल बी सिंथेसाइज्ड, राइट. और प्रोटीन्स तुम्हें ऑलरेडी पता है, प्रोटीन्स के जो इंडिविजुअल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं या स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट. प्रोटीन्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट. अमीनो एसिड्स कंबाइन करके प्रोटीन की लंबी चेन बनाते हैं, राइट. तो यहाँ पर जो टेम्पलेट होगी वो भी एसोसिएटेड होगी विद द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. टेम्पलेट के थ्रू अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज करके प्रोटीन की लंबी चेन बनाएंगे. और ये जो प्रोटीन की लंबी चेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट. अगर हम लोग सेल में देखें तो mRNA सिर्फ 5% दिखेगा. ऑफ ऑल द टोटल RNA which is present in the cell, mRNA constitutes about 5%. लेकिन देखो ये कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है. न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है कि कौन से टाइप के प्रोटीन बनाने हैं, राइट. एंड ऑल ऑफ दीज प्रोटीन्स व्हिच आर बीइंग मेड एक्चुअली दे गवर्न एंड कंट्रोल एज वेल एज रेगुलेट ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज. ठीक है, इवन जो हमारे कैरेक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सर्टेन प्रोटीन्स, राइट. So mRNA is actually doing a very important, a very essential process, right? अच्छा, अगर इसका लाइफ स्पैन देखा जाए तो ये काफी छोटा लाइफ स्पैन होता है इसका. इट हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पैन. तो ये जैसे ही अपना इंफॉर्मेशन कैरी करके लाता है, इट ट्रांसमिट्स इट्स इंफॉर्मेशन, इट इज देन डिग्रेडेड. लेकिन क्योंकि इसका छोटा लाइफ स्पैन है, टर्नओवर काफी हाई होता है.
राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो लीनियर, लंबा होता है और काफी लॉन्ग होता है. लॉन्ग क्यों होगा? देखो पॉलीपेप्टाइड चेन जो भी इसको बनानी है उसके लेंथ का तो होना ही चाहिए, राइट. इट शुड कोड फॉर ऑल द अमीनो एसिड्स व्हिच आर एक्चुअली फॉर्मिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो जितनी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन उतना ही लंबा ये पर्टिकुलर आरएनए होगा. अच्छा, ये बना कैसे है? हमने ये तो बोल दिया कि न्यूक्लियस से आता है साइटोप्लाज्म तक. बना कैसे है? इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड ऑन वन कॉपी ऑफ द डीएनए ओनली. ठीक है, डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर ही ये बना है. तो जाहिर सी बात है जिस डीएनए के स्ट्रैंड पे बना होगा उसी से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी इसकी, राइट. सो इट इज एक्चुअली complementary to the DNA strand from which it is formed. Right? The only difference which you are going to find is thymine will be replaced by uracil. ठीक है, तो थाइमीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा यूरासिल से एंड इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द इनिशियल कॉपिंग साइट यानी कि डीएनए जिस पे से ये बन के आया है, राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट एमआरएनए. अच्छा, अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो स्ट्रक्चर हम लोग अगर सिंपल स्ट्रक्चर बनाए, ये हो गया इसका कोडिंग रीजन. ठीक है, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेगा एंड इट विल फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट. अब कोडिंग स्टार्ट भी कहीं से होनी चाहिए, राइट. सो दिस हियर इज द इनिशिएशन रीजन. इनिशिएशन कोड होगा यहाँ पे. ठीक है, फिर जब कोडिंग हो जाए तो यहाँ पे ऑब्वियसली खत्म होनी चाहिए. सो अगेन देयर इज अनदर रीजन विच इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन रीजन, जहाँ पे टर्मिनेशन कोड होगा. ठीक है, और इसके अलावा आगे पीछे 3' और 5' एंड भी तो होगा, जस्ट लाइक इट वाज प्रेजेंट इन द डीएनए, राइट. तो यहाँ पे दिस हियर इज द नॉन कोडिंग रीजन, ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करेगा. यहाँ पे 5' एंड की तरफ मिथाइलेटेड ग्वानिन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइलेटेड जी कैप, राइट. तो बस ये याद रखो 5' के साइड पे देयर विल बी ग्वानिन बेस, राइट. जबकि 3' के साइड पे देयर विल बी पॉलीएडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, एडेनिन के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे. राइट. सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कोडिंग रीजन बीच में होता है, उसका इनिशिएशन होता है, फिर उसका टर्मिनेशन भी होना होता है, राइट. और 5' एंड के साइड पे ग्वानिन बेस होता है जो कि मिथाइलेटेड कैप फॉर्म करता है, जबकि 3' के एंड पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एडेनिन बेसिस देखते हैं जो कि पॉलीएडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म करते हैं, राइट. और ये जो बीच में रीजन देख रहे हो ना, राइट, this region which is connecting the initiation region to the methylated G cap, this is the non-coding region. ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा. And similarly for this region also, this is also the non-coding region, right? तो I hope you have understood. ये linear होता है, simple सा structure होता है और ये कोड करता है for the polymerization of amino acids to form the polypeptide chain. Now let us move on to the tRNA or the transfer RNA. The tRNA is in fact also known as the adapter molecule. Right? अब देखो मैसेंजर आरएनए एक मैसेज तो लेकर आ गया, लेकिन इस मैसेज को रीड भी तो करना है एंड अकॉर्डिंगली एक टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है. So that reading of this message and recognition of the message is under the control of tRNA or it is regulated by the tRNA, right? So the transfer RNA or the adapter RNA molecule, it basically reads, recognizes the message and accordingly prepares the polypeptide chain, right? तो अब ये होगा कैसे? देखो सबसे पहले तो ये important है कि these are the smallest kind of RNA. राइट. एंड अगर इसकी परसेंटेज देखी जाए इट इज 10 to 15% ऑफ द टोटल आरएनए इन अ सेल, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो सीन कि यहाँ पे टीआरएनए की
पहले तो ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये शो करता है सेकेंडरी टर्शरी फोल्डिंग, राइट। और ये फोल्ड करके एक 2 डायमेंशनल क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, राइट। और ये फोल्डिंग करता कैसे है, देखो बेसिस ही तो है इसके पास, राइट। जब ये फोल्ड करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इंटरनली होने लगेगी, एंड दैट इज व्हाई इट अज्यूम्स अ क्लोवर लीफ लाइक अपीयरेंस। क्लोवर लीफ लाइक अपीयरेंस एज इन an appearance like this, right? तो 2 डायमेंशन में ये कुछ ऐसा अपीयर करता है। एक्चुअल 3 डायमेंशनल अपीयरेंस कैसा होता है, ये और कॉम्पैक्ट हो जाता है by internal folding and it somewhat assumes an inverted L shape. Right, so it somewhat becomes like this, right, and this is because of internal folding only which occurs, right. So I hope you have understood. अब देखो इसका काम क्या है, it basically recognizes the codes which are present on the messenger RNA and accordingly it carries the activated amino acids to the site of protein synthesis यानी कि ribosomes तक, right. तो इसका काम क्या है, एक तो मैसेज को रीड करना और अकॉर्डिंगली एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को लेकर आना सो दैट प्रोटीन चेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इट, राइट। तो ये है इसका काम। अब इसी के लिए देयर आर डिफरेंट लूप्स, इफ यू कैन सी हियर when we look at the structure of this particular clover leaf you can see there are 3 loops here। तो हर लूप का एक अलग अलग इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे ट्रांसफर आरएनए के काम में। ये जो लूप होता है ना, इट हैज द साइट फॉर एंजाइम रिकग्निशन। जाहिर सी बात है ये जो काम हो रहा है, ये जो फंक्शन कर रहा है, उसके लिए एंजाइम्स चाहिए। सो दिस इज द साइट फॉर एंजाइम रिकग्निशन। This here is the site for attachment to ribosomes. See, ribosome ही वो cellular organelles है या वो component है cell का जहाँ पे protein synthesis होगा, which will initiate and regulate the protein synthesis. So here there has to be a site for ribosome attachment also. Right? What about this third loop? ये third loop actually consist of a code. So for example, this is the code which it consists of. ये code anti होता है of the messenger RNA. Right? तो अब ये complementary होता है, तो you already know कि A हमेशा T से अटैच करता था, लेकिन T को हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया है, U से, right? So here it will attach to the U. U will in turn attach to the A and G attaches always to the C, right? तो एक्चुअली जहां पे mRNA का ये वाला कोड होगा UAC, वहीं पे जाकर ये tRNA अटैच करेगा with this anti code और anti codon. So this loop here consists of the anti codon, which is a complementary base pairing of a code which is present on the mRNA. राइट, तो अब जब ये इस पे जाके अटैच करेगा तभी तो रीड कर पाएगा कि कोड क्या है mRNA पे, राइट। एंड इट हैज आल्सो एन एक्सेप्टर साइट। एक्सेप्टर साइट क्या करती है, इट एक्सेप्ट्स द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इसी साइट पर बाइंड करता है, राइट। एंड उसके बाद उसका क्या होता है, कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, यू विल स्टडी दैट इन डिटेल in the next coming lectures। तो जो अमीनो एसिड एक्टिवेटेड है वो एक्चुअली यही एक्सेप्टर साइट पे बाइंड होगा and it will be carried to the site of protein synthesis. So here we can also write amino acid binding site, right? So this here is the clover leaf structure and इसी की और folding होगी तो 3D structure, compact structure बन जाएगा which will be in the form of an inverted L.
तो अब तुम देख ही सकते हो यहाँ पे जो भी कोड होगा उसके लिए स्पेसिफिक टीआरएनएस होने चाहिए। तो हर अमीनो एसिड के लिए देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए। इनफैक्ट एक टीआरएनए इनिशिएट भी करता है, देयर इज अ स्टार्ट टीआरएनए आल्सो। However, there is no tRNA for a stop codon, right? So this was about the tRNA. I hope you have understood about the tRNA also, right? Next we move on to the ribosomal RNA or the rRNA. Moving on to rRNA. देखो नाम से ही पता चल रहा है rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये अलग अलग टाइप का होता है एंड ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है राइबोसोम्स का। So it forms the ribosomes. राइट और राइबोसोम्स में सिर्फ आरएनए तो होता नहीं है, आरएनए प्लस प्रोटीन्स होते हैं। सो इट एसोसिएट्स विद प्रोटीन्स टू फॉर्म द डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स। और अगर इसकी मात्रा देखी जाए तो एक्चुअली दिस इज प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। 80% ऑफ द सेल आरएनए इज एक्चुअली rRNA, राइट। और इसमें देखा गया है देयर इज अ लॉट ऑफ कॉइलिंग, ठीक है, ये ट्विस्टिंग शो करता है, फोल्डिंग शो करता है, देयर इज कॉइलिंग, देयर इज लूपिंग ऑफ द स्ट्रैंड टू फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर, राइट। एंड इट इज ऑल्सो सीन कि जो राइबोसोम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ rRNA प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज एसोसिएटेड, देयर आर टू काइंड्स ऑफ राइबोसोम्स, राइट। देयर इज द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, which are the larger ribosome molecules, इनको हम लोग बोलते हैं ATS ribosomes, AT Swedberg, right? ये जो S है, it is a sedimentation coefficient which is dependent on the density and the size of the ribosomes, right? तो इसको हम लोग बोलते हैं ATS ribosomes। और जो prokaryotic ribosomes होते हैं वो होते हैं 70S राइबोसोम्स, राइट। तो उनकी डेंसिटी एंड साइज इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द ATS राइबोसोम्स। और यही प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के ही टाइप ना हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी फाइंड होते हैं, राइट। सो 70S राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इनके जो डिफरेंसेस है इट अकर्स इन द सब यूनिट्स, ठीक है। हर राइबोसोम जो होता है ना वो बना होता है दो सब यूनिट से, एक बड़ा सब यूनिट होता है और एक छोटा सब यूनिट होता है। तो ATS जो बना होता है इट इज मेड अप ऑफ अ 60S सब यूनिट एंड अ स्मॉलर 40S सब यूनिट, राइट। whereas जो ये छोटा वाला राइबोसोम होता है 70S का, इट इज मेड अप ऑफ अ 50S सब यूनिट एंड अ 30S सब यूनिट। तो 50S बड़ा सब यूनिट होता है, 30S छोटा होता है। अब तुम लोग सीधे इसको ऐड मत कर लेना, 60 + 40 100 होता है, लेकिन इसको बोलते हैं 80S सब यूनिट बिकॉज देयर इज अ पार्ट विच ओवरलैप्स, राइट। एंड सिमिलरली हियर 50 + 30 होता है 80, बट हम लोग इसको बोलते हैं 70S सब यूनिट बिकॉज देयर इज अ पार्ट विच इज ओवरलैपिंग, right? So this is how the RNA plus proteins, they associate with the ribosomes to form the component structure of the ribosomes to form the different subunits, and actually this is present in the most concentration. rRNA 80% of the total RNA constitute करता है, right? So this was a basic idea as to how the types of RNA are different and they are performing a part of the function of protein synthesis in the organismal cells, right? As well as how the structure of the RNA is and how it is different from the DNA. I hope you have understood all about RNA in this particular lecture. We'll meet again in the next class wherein we are going to discuss about the method by which the DNA forms the RNA. Till then, revise all this. Stay tuned.